નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર વડોદરાની 2 દિવસીય મુલાકાતે છે અને વડોદરા શહેરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં તેમના દ્વારા હાજરી આપવામાં આવી રહી છે. આજ રોજ તેમના બીજા દિવસની મુલાકાતે સર સયાજીનગર ગૃહ ખાતે એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તમામ મહાનુભાવો પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભારત સરકારના કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમ જયશંકર 2 દિવસીય વડોદરાની મુલાકાતે છે. તેવામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં સરકારની 8મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. શહેરના સયાજીરાવ નગર ગૃહ ખાતે વિદેશ મંત્રી, રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીની ખાસ ઉપસ્થિતિમાં પ્રધાનમંત્રીની યોજનાઓનો લાભાર્થીઓને જાણકારી આપવામાં આવી હતી. સાથે સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું વર્ચ્યુઅલ જીવંત સંવાદ લાભાર્થીઓ સાથે પણ તેઓ જોડાયા હતા. પ્રધાનમંત્રીએ વિવિધ રાજ્યોના વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓ સાથે સીધો સંવાદ કર્યો હતો. કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી તથા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા હતા. કાર્યક્રમમાં રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ સયાજીગંજના ધારાસભ્ય જીતુ સુખડિયા, વાઘોડિયાના ધારાસભ્ય મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ, અકોટાના ધારાસભ્ય સીમાબેન મોહિલે, કરજણના ધારાસભ્ય અક્ષયભાઈ પટેલ, વડોદરા શહેરના પ્રથમ નાગરિક મેયર કોયરુભાઈ રોકડિયા, ડેપ્યુટી મેયર નંદાબેન જોશી, સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન ડોક્ટર હિતેન્દ્ર પટેલ, દંડક ચિરાગ બારોટ, શાસક પક્ષના નેતા અલ્પેશ લિંબાચિયા, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અશ્વિનભાઈ પટેલ, જિલ્લા કલેક્ટર એબી ગોડ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ, તાલુકા વિકાસ અધિकारी, डेप्यूटी कलेक्टरों, काउंसलरों खास मोटी संख्या में उपस्थित रहा था. 100% सिद्धि प्राप्त की गई और लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है। सर, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% टैप वाटर दिया जा रहा है और सर प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत उसी तरह प्राइम मिनिस्टर जन आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत वडोदरा रूरल में 2 लाख से ज्यादा परिवारों में 98 करोड़ से ज्यादा लाभ मिला और लोगों के स्वास्थ्य की इसके अंतर्गत 12 लाख से ज्यादा लोगों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ मिला, जो आज भी मिल रहा है सर। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर जन सभी योजनाएं और गुजरात सरकार की सभी योजनाओं में वडोदरा जिला हर हमेश अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, करता रहेगा और यही बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जनता जनार्दन का। और हमारे राज्यपाल महोदय श्री मानदेव व्रत जी के द्वारा लिखी गई ये जो प्राकृतिक कृषि की पुस्तक अर्पित हुई है, एक द्वारा तालियों बधाई नहीं आस्था सम्मान में अशोक भाई पटेल का स्वागत करेंगे डेप्यूटी बीडीओ श्री और सभी बहनों को स्वागत करने के लिए અને ગરીબોને અપાતો લાભ એમની શરૂઆત જો કોઈ દેશમાં કરી હોય તો નરેન્દ્રભાઈએ આ રાજ્યની અંદર મુખ્યમંત્રી તરીકે ગરીબ કલ્યાણ મેળા કરીને શરૂઆત કરાવીને ગોતી ગોતી શોધી એ મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાવાના માટેના ભગીરથ પ્રયાસ તાલુકા સુધીના ગરીબ કલ્યાણ મેળાઓ અધિકારીઓ સરકારી યોજનાનો તમને લાભ મળવા પાત્ર છે. અનેક નિર્ણયો એ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ લીધા છે. ડીબીટી દ્વારા સીધી જ સહાયો, સબસિડીઓ હજારો, ખરબો, કરોડો રૂપિયા એ સીધા પગ કરી દેતા હતા. એજન્ટો અને વચેટિયાઓ એ ગરીબોમાંથી પણ ફોર્મ ભરવાના પૈસા લેતા હતા. નરેન્દ્રભાઈ કરી છે ને એની અનેક વાતો અહીંથી થઈ શકે એમ છે. આજે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 11મો હપ્તો ગુજરાતમાં 58.40 લાખ જેટલા ખેડૂતોને સીધી સહાય, 58 લાખ ખેડૂતો, રાજ્યનો 11મો હપ્તો 1168 કરોડ રૂપિયાની सीधी सहाय एक દિવસે ક્લિક કરીને મળે એ સમયે મિત્રો આજે આપણે જોવાના છે. સિંગલાથી નરેન્દ્રભાઈ अपनी साथ जोड़ावाना है। जब हम मोदी सरकार की 8वीं सालगिरह मना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे गुजरात आने का अवसर मिला, आप सबके साथ फिर से जुड़ने का अवसर मिला और इसीलिए क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं आपका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नाते जब मनाने का समय आता है, खुशी का समय आता है, सोचने का समय आता है, करने का समय आता है, तो
सब ये तो स्वाभाविक है कि आप उन्हीं के साथ समय बिताना चाहते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं, और इसीलिए मुझे गुजरात वापस आने में बहुत बहुत खुशी आता है कि पिछले 8 सालों में भारत में कितना बदलाव आया है। और सबसे पहले तो मैं वडोदरा के शासन को मैं अपना बधाई देना चाहता हूं कि जो भी कार्यक्रम जो हैं, जो भी योजनाएं जो हैं, उन्होंने किस कमिटमेंट, किस प्रतिबद्धता के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया है, और उसका सबूत जो है वो आप लोग। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया, और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी उन्हीं को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार के 8 साल होने पर कैसा कार्यक्रम किया जाए, कौन सा कार्यक्रम किया जाए। तो हमारे नड्डा जी जो हिमाचल के ही हैं, हमारे जयराम जी, उनकी तरफ से एक सुझाव आया और दोनों सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। कि जो 8 साल जो बीत चुकी है, और इसका संदेश जो है बहुत स्ट्रांग, बहुत क्लियर है कि ज़माना बदल गया है। अब देश में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हो रही है, और ये परिवर्तन जो है ये योजनाओं के माध्यम से हो रही है। और ये योजना जो है, मैंने कुछ अपने भाषण में कुछ आपको आंकड़े दिए, प्रधानमंत्री ने तो और भी दिए आपको, और ये जिस तौर पे हो रहा है, जिस स्केल पे हो रहा है, आप समझिए कि देश में अब एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। और जो भी चुनौती जो सामने आ रही है, जैसे महामारी की थी, या किसी कहीं सीमा पे कुछ चुनौती हो, या आतंकवाद की चुनौती हो, ये देश कुछ अलग देश है, ये सरकार कुछ अलग देश है, ये प्रधानमंत्री तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ये आज का संदेश है कि हम पे भारत की जनता जो है, भारत की प्रजा विश्वास करती है। तो हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, ये आज का संदेश आपने जो आज के लाभार्थी हैं, उनसे भी जो लाभार्थी थे उनका खुद उदाहरण था कि सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। तो यही आज का संदेश है, और मुझे बहुत खुशी है फिर से कि आज मुझे यहाँ वडोदरा आने का अवसर मिला, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो देश में जो प्रगति हो रही है, जो गुजरात में जो प्रगति हो रही है, वो दुनिया पहचानती है। और आज अगर हमारी दुनिया में इज्जत, हमारी जो कदर जो करते हैं बाकी देश, इसका कारण यही है। तो मेरे हाथ भी विदेश मंत्री के तहत उतने ज़्यादा मजबूत हुए हैं। जहाँ भी हम जाते हैं दुनिया हमको मानती है, दुनिया मानती है, क्योंकि एक जो हमने घर में किया है, और जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दुनिया के साथ हाथ बढ़ा के दुनिया की आज सहायता भी करें। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई जो सालों से चल रही है, उसमें वो तो जारी रहेगी। ये नहीं है कि आतंकवाद एक दिन में बंद हो जाएगा, पर आतंकवादी भी जानते हैं कि ये सरकार वो पुरानी सरकार नहीं है, कि अगर कुछ हमें करना है हम बिल्कुल करेंगे, और जो आतंकवाद के खिलाफ जो भी हमें कदम उठाने होंगे वो कदम उठाए जाएंगे। तो ये लड़ाई जारी रहेगी, पर हमें वो वहाँ भी विश्वास है कि हम सफल रहेंगे इसमें।